National Commission for Scheduled Castes was set up under the Article 338 of the Indian Constitution to investigate and monitor all matters relating to the safeguards of scheduled castes under any law for the time being in force or under any order of the government, and to evaluate the working of such safeguards and to inquire into specific complaints with respect to deprivation of rights and safeguards of the scheduled castes. Existing system of filing the complaints by aggrieved citizens had to be done by either sending applications via post or by visiting their respective state offices or New Delhi headquarters for filing their complaint. The NCSC Grievance Management Portal launched today is intended to enable people from scheduled castes to file their complaint online and get them addressed. However, offline processes are still available to the public, but this portal not only makes it easier for a complainant traveling from afar, but is also a safer option considering the COVID-19 pandemic situation in the country. NCSC Grievance Management Portal will facilitate aggrieved persons from the scheduled castes to file complaints by first registering themselves for filing their complaint about any incident of atrocity or complaints related to service matter and social and economic matters, etc., in an easy as well as safe manner. The portal is available in English and Hindi languages. However, users can upload their complaint in any Indian language. The portal ensures that grievances are registered and acknowledged promptly through a unique file identification number for future reference. A complainant has the option to upload the audio and video file as well. Apart from bringing in ease of usage to the users, the inbuilt robust e-filing system will enable the Commission to ensure compliance of legal and other safeguards against the exploitation of scheduled castes, take necessary actions and resolve issues within stipulated timeframes, and meet the constitutional mandate in a more effective manner. I would now request Honorable Minister Shri Ravi Shankar Prasad ji to share his thoughts with us on this occasion. भारत सरकार के सम्मानीय राज्य मंत्री आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री विजय सापला जी, उपाध्यक्ष श्री अरुण हल्दर जी, सदस्य अंजू बाला जी, सुभाष रामनाथ पादी जी, मेरे विभाग के सचिव श्री अजय साहनी जी, सुशील कुमार जी, अभिषेक सिंह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज शिकायत करने की परंपरा आयोग में डिजिटल हो रही है। यही तो है डिजिटल इंडिया। सब कुछ जब डिजिटल होता है तो डिजिटल इंडिया की सफलता का एक और मील का पत्थर आता है। और बहुत ही ये स्वाभाविक है कि आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, इसलिए इस अवसर पर सांपला जी ने मुझे बुलाया। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। डॉक्टर अंबेडकर को मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही मेरी इज्जत उनके प्रति बढ़ती है। हम लोग कहते हैं बार बार कि संविधान बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कुछ लोग कहते हैं इसलिए कि वो दलित वर्ग से आते थे। कभी एक बात नहीं भूलना चाहिए कि उनको संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन इसलिए बनाया गया कि उस समय वो भारत के सबसे योग्य संविधान विशेषज्ञ थे। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे याद है कि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण पैम्फलेट मैंने पढ़ा, मुंबई में पढ़ते थे, नो प्यून नो वाटर। क्योंकि
स्कूल में पढ़ते थे तो बाकी सब तो घड़े में पानी पीते थे, और जितने उनके वर्ग के बच्चे आते थे उनके लिए चपरासी 2 बार बाहर पंक्ति बैठा करके बाल्टी से पानी गिराता था। उस दिन वो छुट्टी पर था तो प्यासे रह गए। आप कभी कल्पना करिए कि इतनी पीड़ा और विषमता से अपने को उसमें डालना चाहिए। क्योंकि मैं जब पटना में वकालत करता था सांपला जी, तो मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी बना था पार्टी में दोबारा सक्रिय होने के पहले, विद्यार्थी परिषद के बाद। और मैंने उस विषमता को जमीन पर देखा है। मैंने जाकर अभी जो हमारे रतलाल जी मुझे मेरे बारे में बोल रहे थे, तो मेरे अंदर ये जो एक भावना है वो बहुत दिनों से है, जब मैंने देखा है उनकी विषमताओं को। और उन्होंने क्या सपना देखा कि हमें संवैधानिक तरीके से भारत को बनाना है और अपने लिए सम्मान पाना है। वी हैव टू इंश्योर प्रोग्रेस ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। और उस संविधान की 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फ्रीडम भी है, लिबर्टी भी है, लेकिन इक्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है। जब तक समानता नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता मजबूत नहीं होगी। और अगर हिंदुस्तान के आम नागरिक को एम्पावर करना है तो विषमता को समाप्त करना जरूरी है। ये जो भारत के संविधान की बहुत बड़ी सोच है ना, इसको समझना चाहिए। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं कि रतनलाल जी आप और आपका विभाग और सांपला जी आपका विभाग डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन, उनका संघर्ष और उनके संकल्प को बताना चाहिए देश की आने वाली पीढ़ी को, कि वो समझें। और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर भारत को बहुत समझते थे। अगर आप देखें मौलिक अधिकार को, क्योंकि आज का अवसर है, मुझे लगा कि मैं अपने इस विचारों को आपके सामने साझा करूं, तो उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग जो हैं सबों को पढ़ाई के लिए भी रिजर्वेशन दिया, नौकरी का भी रिजर्वेशन दिया, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ एसटी एससी को दिया। मतलब विधानसभा और लोकसभा में उनके लिए आरक्षण किया। तो अगर हमें उन्हें आगे बढ़ाना है तो हमें उनके लिए यह भी आरक्षण देना पड़ेगा। और 2 मूल सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे जो वनवासी भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको इसलिए आरक्षण दिया कि उनको वन से निकाल कर समाज के मुख्य धारा में लाना था। और जो हमारे दलित भाई हैं, उनको आरक्षण समान इसलिए दिया कि उनके साथ जो हजारों साल की विषमता थी उसको समाप्त करना था। और संविधान के निर्माण करने वाले बड़े बहुत महान लोग थे, बाबा साहब, डॉक्टर पटेल, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। उनकी समझदारी थी भारत के भविष्य के बारे में। लेकिन उन्होंने ये पाया कि ये विषमता हिंदू समाज की कुरीति है, दलितों के साथ हुई। इसीलिए जब शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 बना, उसमें जिसमें हर स्टेट में कौन कौन शेड्यूल कास्ट होगा उसको उसी के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें लिखा है दिस शैल बी एप्लीकेबल टू दोज हु आर हिंदूज। और बाद में उसमें सिख और बुद्धिस्ट जोड़ा, जो संविधान में भी प्रावधान है। इसलिए आजकल जब मैं दलित और मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम की बात सुनता हूं तो मेरे अंदर एक कौतूहल पैदा होता है कि आपको यह बताना पड़ेगा कि आपके समाज में भी ये विषमता हुई है हजारों साल से, उसे स्वीकारना पड़ेगा। हिंदू समाज के लोगों ने स्वीकारा और संविधान बनाने वालों ने स्वीकारा कि हमारे यहाँ विषमता हुई है, उसका हमें संवैधानिक उत्तर देना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल समझदारी और संवैधानिक समझदारी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा मानता हूं कि आजाद भारत में 3 नाइंसाफी हुई है, और ये मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। भारत को बनाने वाले हर विचारधारा के लोग रहे, उनकी सोच रही है। सरदार पटेल अगर नहीं होते तो भारत कहां होता? 565 रियासतों में या 66 में सरदार
पटेल 565 को हैंडल कर रहे थे, कोई समस्या नहीं है। नेहरू जी एक को हैंडल कर रहे थे, कश्मीर को समस्या थी, अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुई है। अब जब भारत अगले साल 75 ईयर्स होगा तो भारत की नई जनरेशन्स को भारत के इतिहास को ऑब्जेक्टिवली समझने का अवसर देना चाहिए। तुम तय करो किसने सही किया, किसने गलत किया। सरदार पटेल मरे 1950 में, उनको भारत रत्न मिला 1991 में। ये कैसी नाइंसाफी है भाई। ही वॉज ए प्राउड ज्यूअल ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर मरे 1956 में, उनको मिला भारत रत्न 1989 में। क्यों भाई, उससे बड़ा कोई भारत रत्न हो सकता है क्या? और मौलाना आजाद मरे 1959 में और उनको मिला भारत रत्न 1992 में। अब 89 में किसकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री थे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और 1992 में कौन प्रधानमंत्री थे, ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। शायद अगर परिवार के प्रधानमंत्री हुए होते तो ये काम भी आगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को करना पड़ा, तो लोकनायक जयप्रकाश जी को उन्होंने भारत रत्न दिया। मुझे लगा कि सापला जी, आज का दिन, ये मेरे मन की पीड़ा थी, इसको मैं शेयर करूं इस मंच से। इसलिए भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच क्या थी, वो देश को किस तरफ ले जाना चाहते थे, ये समझना बहुत जरूरी है। और आज मैं हमेशा कहूंगा कि उस आंदोलन के माध्यम से हमारे देश के दलित समाज को जो अवसर मिला है, जैसे वो आगे आए हैं, उससे बहुत संतोष होता है। चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेसी में हो, पॉलिटिक्स में हो, बाकी हो, और आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी बहुत काम हो रहा है। मैंने आपसे कहा सापला जी, कैसे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। मैंने मिलिंद कामले की चर्चा की आपसे, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उनकी कहानी क्या है, बहुत रोचक है। वो जूनियर इंजीनियर थे, रिजर्व कोटा से आए थे, तो कंस्ट्रक्शन काम में सैकड़ों करोड़ पेमेंट करते थे। तो उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं भी कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। कहा तुम पागल हो, 22 साल में इंजीनियर बन गए हो, चीफ इंजीनियर बन जाओगे। पिताजी शिक्षक थे, बहुत लड़ाई हुई, मैंने एक दिन रिजाइन कर दिया। पिताजी ने कहा गेट आउट, तो मेरे बड़े बेटे हो, ये सब करते हो, बाहर चले गए। तो मैंने उनसे पूछा, वो पद्मश्री हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप वापस घर कैसे लौटे। कहा जिस दिन मेरा टर्नओवर 100 करोड़ हो गया तो मैं अपने मर्सिडीज बेंज गाड़ी में पिताजी से मिलने गया कि पिताजी बिना रिजर्वेशन के देखिए मैं कहाँ पहुँच गया। उसके बाद उन्होंने बनाया दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिसमें जो दलित एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। मैं उनसे मिलता रहता हूँ। आज देश के ऐसे आंदोलन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो रतनलाल जी और सापला जी, आप लोग दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को स्थान मिलना चाहिए। अच्छी बात है आज का ये पोर्टल बना है। देखिए, आपने मेरे विभाग को, मुझे, मेरे पदाधिकारियों को बहुत अच्छी उद्गार प्रकट किया, आपका धन्यवाद। ये समझना चाहिए कि डिजिटल इंडिया क्या है, और बहुत संक्षेप में मैं डिजिटल इंडिया के कुछ प्रमुख लक्षणों को आपके सामने रखना चाहता हूं। 14 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक संकल्प दिया था कि अगर देश की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं ऐसा भारत बनाऊंगा जहां IT प्लस IT इज इक्वल टू IT। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT प्लस इंडियाज टैलेंट IT इज इक्वल टू इंडिया टुमारो IT। ये बताना है हमें। और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा महायज्ञ वो मेरे कंधों पर सौंप देंगे IT मंत्री के रूप में। आज देखिए देश को हमने कैसे बदला। इस देश में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन है, लगभग 128 करोड़ आधार कार्ड है, हमने जोड़ा, दोनों को लिंक किया। लगभग 40 करोड़ हमने गरीबों के बैंक अकाउंट खोले, जनधन अकाउंट में। और आपको मैं आज मित्रों को, पत्रकार मित्रों को मैं कुछ बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी तक विभिन्न सरकार, लगभग 400
केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं में अब तक 14,72,214 करोड़ रुपया भेजा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लगभग 13 लाख लाभार्थी इसके हैं, 13 लाख करोड़, क्षमा करेंगे आप। और कितना हमने बचाया है? 1,78,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते थे। तो डिजिटल इंडिया से क्या ईमानदारी होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। डिजिटल इंडिया हमारे विभाग के लोगों ने उसकी परिभाषा बहुत टेक्नोलॉजी पूर्ण बनाई थी। हमने कहा नहीं, इसकी सरल भाषा, तो भाषा सापला जी मैंने खुद बनाई। डिजिटल इंडिया इज डिजाइन टू एम्पावर ऑर्डिनरी इंडियंस विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, एंड नंबर 3, ब्रिंग इन डिजिटल इंक्लूजन। एक समावेशी डिजिटल भारत हमें बनाना है, जहां डिजिटल डिवाइड को हमें पाटना है। और यह सब होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी से जो भारत में बनी हो, सस्ती हो। आज देखिए, आधार भारत के टेक्नोलॉजी के लोगों ने बनाया, मेरा विभाग देखता है उसको। ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GSTN भारत के टेक्नोलॉजी के बच्चों ने बनाया है। अभी तक बता दूं कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं 1,28,00,000। नंबर ऑफ इनवॉइस उस पर लोड हुए हैं 1,195 करोड़, और 72.22 लाख करोड़ का पेमेंट अभी तक हो चुका है GSTN पर। यह आयुष्मान भारत, ये क्या है? ये भी भारत के टेक्नोलॉजी के लोगों ने बनाया है। उस पर 14.88 करोड़ कार्ड इशू हो चुका है, और 1,74,000 1.74 करोड़ हॉस्पिटल उसमें इन्वॉल्व हैं। डिजिटल पे नेशनल स्कॉलरशिप, अभी तक हम लोगों ने लगभग 4 करोड़ विद्यार्थियों को 13,117 करोड़ रुपया भेजा है। और किसानों की बात बहुत होती है, तो आपको बता दूं कि हम लोगों ने बनाया है ई-नाम मंडी। आप पंजाब से आते हैं, 1,000 मंडी उसमें कनेक्टेड हैं। 1.7 करोड़ फार्मर्स उसमें जुड़े हुए हैं। 1.58 लाख ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं और व्यापार करते हैं आराम से बैठकर। वो कोई कानून उसकी चिंता नहीं करते, सीधा डिजिटल मामला चलता है। तो ये मैंने आपको कुछ मोटी बातें बताई कि डिजिटल इंडिया से 5-6 वर्षों में देश को हमने कैसे बदला। पिछले साल कोरोना आया, फिर वो दस्तक दे रहा है। अब रतनलाल जी और सांपला जी, कोरोना में जहाज बंद, रेल बंद और सड़क मार्ग भी बंद, लेकिन देश को चलाने का काम मेरे तीनों विभाग कर रहे थे। IT विभाग, कम्युनिकेशन संचार विभाग और डाक विभाग। मोबाइल फोन, कम्युनिकेशन, IT, इंटरनेट, ये सब जो आपने नए नए प्रोडक्ट्स देखे, कोविड सावधान देखा, बाकी देखा, ये सब हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम देखा। डिजिटल बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे थे, पढ़ाई नहीं रुकी। और अगर मैं कानून मंत्री की टोपी पहनूं तो लगभग 72 लाख केसेस की सुनवाई हुई है थ्रू ई-कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये बातें मैंने इसलिए कही कि किस तरह से हमने देश को बदलने की कोशिश की है पिछले 5.5-6 वर्षों में। अभी अजय साहनी चर्चा कर रहे थे हमारे CSC की, आप कर रहे थे। ये CSC क्या है? CSC एक डिजिटल खिड़की है। और मैं हमेशा मानता हूं कि डिजिटल इंडिया को अगर सफल होना था तो डिजिटल इंडिया को एक मास मूवमेंट बनना जरूरी है। तो ये हमारे बच्चे हैं, गांव-गांव में फैले हुए हैं। लगभग ये 75,000 थे जब हमारी सरकार थी, अब उनको हम 4 लाख पर ले गए। ये आपके पासपोर्ट बनाते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, डिजिटल स्किलिंग करते हैं, रेलवे का टिकट काटते हैं। लगभग 12 लाख बच्चियां काम करते हैं, लगभग 70,000 महिलाएं। इस बार जो 26 जनवरी की परेड थी, अभिषेक बैठे हुए हैं यहाँ पर,
तो हमारा जो आईटी विभाग का टैब्लो लगा था, तो हमने कहा 2 बेटियों को खड़ा करो उस पर जो एग्जैक्ट काम कर रही हैं, और उन्होंने परेड किया राजपथ पर, ताकि देश देखे कि सब क्या काम करती हैं। मैं सापला जी आपसे आग्रह करूंगा, रतनलाल जी आपसे भी आग्रह करूंगा, कभी आप लोगों को सीएससी विजिट करना चाहिए। और मैं चाहूँगा अजय इन लोग की व्यवस्था करें, ये लोग जाके देखें। अभिषेक देखो तुम, यू प्लीज शो इट टू देम कि ये बच्चे क्या काम कर रहे हैं। अब मैंने इस कोरोना काल में जब था बंदी, तो हमने कहा कि तुम लोग कुछ ई मार्केट स्टोर खोलो। तो एक हमारी बेटी थी, उसने समोसा बनाना शुरू किया और डाल दिया इस पर, तो गांव में बिक्री शुरू हो गई। उसको मुझे बताया गया कि उड़ीसा में एक पर्व होता है, उसमें एक साड़ी एक विशेष प्रकार की लोग पहनते हैं, उसने उसको बेचना शुरू किया। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो सापला जी, दे अर्न ए कूल प्रॉफिट ऑफ 150 करोड़। समझ गए आप जी? इसके माध्यम से ये जो ई कॉमर्स है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत से बच्चे बच्चियां तो अब फ्रिज भी बेच रहे हैं, आपके बाकी काम भी कर रहे हैं। और मैंने कानून मंत्री ग्रुप में उनको एक अवसर दिया, चूंकि आप इसका उपयोग करने चाह रहे हैं, कि फ्री लिटिगेशन एडवाइस मिलना चाहिए। मतलब कोई बहू परेशान है अपनी सास से या घरेलू हिंसा से, किसी किसान को उसकी तनख्वाह नहीं मिलती है, अवसर नहीं मिलता, किसी मजदूर को उसकी पेमेंट नहीं मिलती। 7 लाख लोगों ने एडवाइस लिया है, वकील बैठते हैं समय पर। तो ये आंदोलन इस तरह से बन जाता है। तो आपने इसका प्रयोग किया है, बहुत अच्छी बात है। ये एक बदलाव का अवसर है, इसको और आगे बढ़ाइए। और हमारे जो प्रधानमंत्री की सोच थी कि डिजिटल इंडिया बदलाव का कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया इज डिजाइन टू एम्पावर इंडियंस, ट्रांसफॉर्म इंडियंस। तो ये सब दिखाई पड़ रहा है। तो ये डिजिटल इंडिया सिर्फ मेरा विभाग नहीं है, हमारा विभाग तो सहयोग कर देता है, लेकिन डिजिटल इंडिया आज देश के लोगों को सशक्त कर रहा है। तो ये संतोष होता है कि हम लोग देश के बदलाव के लिए कुछ काम कर पाए। तो इससे नीचे तक, और मैं आपसे, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने सीएससी को चुना है। सीएससी के माध्यम से जो बच्चों ने काम किया है पिछले 5-6 वर्षों में, तो आपके इस पोर्टल को बहुत सफलता मिलेगी। तो मैं आपका, सापला जी, आपका, आपकी टीम का बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि आपने यशस्वी काम किया है और आगे बढ़े। और मैं अपने विभाग को निर्देश दूंगा कि जो रतनलाल जी ने कहा, जो सापला जी ने कहा, दलित एम्पावरमेंट का मैं स्वयं बहुत प्रशंसक हूं, समर्थक हूं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो उस पर बहुत ही विस्तार से काम करते हैं। जैसा बताया, जो सारे कार्यक्रम हमारे सरकार के हैं तो दलित एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही सक्रियता से चलते हैं। तो मैं अपने विभाग को निर्देश दूंगा कि इन लोगों को पूरा सहयोग किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Thank you so much, sir, for those